Hello friends, today I will discuss the control systems question which were asked in the GATE 2017 exam for electronics and telecommunication. Okay, but before discussing the solutions, first of all, we just analyze the types of questions or difficulty of question. If we compare with the other subject question which were asked in GATE 2017 electronics paper, then control paper was relatively easy. Control questions are easy. But if we compare with the 2016 control question, then level was little bit high. Because in 2016, control questions are very easy. Okay. And the more focus on the stability. बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेबिलिटी से आए थे. Determine the stability or number of poles in the right hand side or left hand side. So this time stability is the center of attraction in control questions. So first of all I will discuss the set 1 questions. Okay. So the first question was, open loop transfer function is given to you and steady state error for step input and ramp input is given to you and value of P is asked. Actually, what is the value of P? It is nothing but the type of the system. Clearly आप देख सकते हो आप कि जो value of P है वो क्या है, वो शो कर रही है कि number of poles at the origin and number of poles at the origin is nothing but the type of the system. We know that for steady state error, if the type is 0, then steady state error will be finite for step input, and if type is 1, then steady state error will be finite for ramp input. If we see here, then for step input, steady state error is 0. That means it can't be a type 0 system, because for type 0 system with step input you will get any value, any finite value, and for ramp input the steady state error is 6. For ramp input, if steady state error is 6, that means it will be a type 1 system, because for type 1 system ramp input के साथ steady state error कितना मिलता है आपको, constant value, any finite. Okay, so it will be a type 1 system. That means P is equal to 1. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आपको स्टेबल सिस्टम दिया है जिसके लिए आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगेन जीएस. ठीक है, और आपसे यह पूछा हुआ है कि फॉर -60 dB per decade ending slope as omega tends to infinity is given to you, that means -60 dB per decade ending slope पर P और Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू बोडे प्लॉट. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमें इनिशियल स्लोप जज करनी थी. हियर इनिशियल स्लोप इज 0. व्हाई 0? बिकॉज देयर इज नो पोल्स और नो जीरोस एट द ओरिजिन. दैट्स व्हाई इनिशियल स्लोप विल बी 0. दैट मींस 0 स्लोप से आपका स्टार्ट होगा बोडे प्लॉट. अब we know that for every pole there is a -20 dB per decade slope, and for every zero there is a +20 dB per decade slope. Now if I want -60 dB per decade, that means difference between number of poles and number of zeros should be 3, and clearly for poles we get minus slope and we also need minus slope, -60 dB per decade. That means number of poles should be greater than number of 0 by 3. Here number of poles is indicated by Q and number of zeros indicated by P. So the difference Q minus P should be equal to 3. If we look at the options, then only in the first option
q minus p is equal to 3. Okay, so option A will be correct. There will be 3 poles and no zeros. Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि फॉर द फेस लैग कंपनसेटर पोल्स एंड जीरोस की पोजीशंस कहां पर होगी एस प्लेन पे. इफ फेस लैग कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू यू, देन वेयर विल बी द पोल एंड वेयर विल बी द जीरो. नाउ फॉर एनी कंपनसेटर the standard transfer function is given by s plus z, s plus p, where z is 0 and p is pole. And for compensator, one term is defined, that is alpha. Alpha is z upon p. If z upon p is greater than 1, then it shows phase lag compensator. And if z upon p is less than 1, then it shows the phase lead compensator. But here z upon p is greater than 1. That means z is greater than p. That means z वैल्यू अगर p की वैल्यू से बड़ी है तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट आपका क्या आएगा, पोल, देन जीरो. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम. 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं. अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, देयर इज अ नो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम विथ अ पोल इन द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन. दैट मीन्स अगर कोई भी पोल राइट हाफ में है आपका, तो सिस्टम आपका कभी भी स्टेबल नहीं होगा. ये पहली स्टेटमेंट आपको बोल रहा है. बट यहां पर मेंशन नहीं किया है कि सिस्टम आपका कॉजल है कि नॉन कॉजल है. और यहां पर बोला है कि नो बीआईबीओ स्टेबल सिस्टम. नो मीन्स वेदर इट इज कॉजल और नॉन कॉजल, दोनों के दोनों सिस्टम आपके स्टेबल नहीं हो सकते अगर राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में आपका कोई भी पोल है. बट अगर हम ध्यान से सोचें, फॉर नॉन कॉजल सिस्टम ROC is always less than pole, less than real part of pole. That means suppose if my pole is in the right half of the S plane, okay, then diagram will be like this. Okay, now suppose my pole is plus 2. So ROC will be for non-causal system sigma less than plus 2. That means like this. And here ROC includes the j omega axis, and we know that if ROC includes the j omega axis, then system will be stable system. तो for non-causal system आपका सिस्टम क्या बन जाएगा, स्टेबल. That means this statement is wrong, because here it is written that for any system, but for causal it is correct, but for non-causal it will be wrong. Now second statement, there is no causal and BIBO stable system with a pole in the right half of the complex plane. जैसा हमने पहली स्टेटमेंट डिस्कस किया ही है कि causal तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपका कोई सिस्टम कॉजल है, दैट मीन्स अगर ये सिस्टम आपका कॉजल सिस्टम होता और पोल अगर आपका राइट हैंड साइड में होता, दैट मीन्स पोल इज सपोज 2, देन फॉर कॉजल सिस्टम आरओसी क्या होती है आपकी, सिग्मा ग्रेटर देन 2. मीन्स आरओसी आपके 2 के राइट हैंड साइड में होती. दैट मीन्स आपका जो आरओसी है वो जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं करती. That means system will be unstable. So for causal system will be unstable always if the pole is in the right half of the S plane. That means statement 2 is correct. That is option number D. Okay. Now next question.
यहां पर आपको फिर से एक एलटीआई सिस्टम गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है और यूनिटी फीडबैक है। तो आपको यह जज करना है यहां पर कि फॉर द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी व्हाट इज द रेंज ऑफ के। आपका क्लोज लूप सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो रेंज ऑफ के आपकी क्या होगी, जबकि आपको ओपन लूप सिस्टम आपको दिया हुआ है। तो very very simple question. For this type of question, when you need to find out any range or open loop system is given to you, you always choose Routh-Hurwitz criteria. It is the simplest technique. So first of all we need to calculate the characteristics equation. Characteristics equation हमारा क्या होता है, 1 plus gh. Here h is 1 because feedback is 1, so 1 plus g equal to 0. So here if we perform this operation 1 plus g equal to 0, then we will get this equation. Okay, now if I arrange in powers of s, then here s square coefficient is 1 plus k, s coefficient is 2k minus 3, and for s ki power 0 coefficient is 2k plus 2. Now we have a perfect characteristic equation. Now we can perform the Routh-Hurwitz criteria. So here s square is the highest power, then s ki power 1, then s ki power 0. If we arrange the coefficient for first and second rows, we know that in the first row the coefficient will be s square coefficient and s ki power 0 coefficient, so 1 plus k and 2k plus 2. And in the second row only s ki power 1 coefficient because there is no other coefficient. So this is written in the RH table, s square and s ki power 1. Now if we perform the RH calculation, then this term will be multiplied by this term minus this term will be multiplied by this term, and whole term will be divided by 2k minus 3. So this into this minus 0 divided by 2k minus 3. That means you will get the answer 2k plus 2. Okay, so 2k plus 2 s ki power 0 term, s ki power 1 here you got 2k minus 3, and s की power 2 you get 1 plus k. हम लोगों को क्या क्या मिला, 1 plus k, 2k minus 3, 2k plus 2. If you have studied RH criteria, then you should know that in the RH criteria we always look at the first column. Okay, so in the first column if all the signs are positive, or you can say all the signs are same, then system will be stable. Okay, so here 1 plus k should be greater than 0, 2k minus 3 should be greater than 0, and 2k plus 2 should be greater than 0 for the same sign, or you can say positive sign. So you will get k greater than minus 1 and k greater than 1.5. So obvious सी बात है, अगर कोई चीज 1.5 से बड़ी है तो माइनस 1 से भी क्या होगी, ग्रेटर ही होगी. So overall you can write k is greater than 1.5. Okay, so answer will be option number A. Now next question, here Nyquist plot. So transfer function, open loop transfer function is given to you, GS. Okay, एंड आपसे पूछा है कि सिस्टम कब कब स्टेबल होगा जबकि आपको k की दो डिफरेंट वैल्यू दी हुई है. You need to judge for k is equal to 10 and for k is equal to 100 whether the system is stable or unstable. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. अगर आपको Nyquist क्राइटेरिया पता होगा, देन फॉर Nyquist क्राइटेरिया n is equal to p minus z. n क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अराउंड द -1, j0 पॉइंट. ठीक है ना, Nyquist प्लॉट जो आप ड्रॉ करते हो वो -1, 0 पॉइंट को अगर इनसर्कल करता है तो आपको n की वैल्यू मिलती है. अगर वो इनसर्कल एक बार भी नहीं करता है -1, 0 पॉइंट को, तो n विल बी 0. जितनी बार इंसर्कल करेगा उतनी बार आप n की वैल्यू काउंट करते चले जाओगे. नाउ व्हाट इज p? p इज नंबर ऑफ RHS ओपन लूप पोल्स. मतलब
आपके ओपन लूप पोल्स कितने राइट हैंड साइड में हैं, जितने होंगे उतनी आपकी पी की वैल्यू होगी। ध्यान रखना है यहां पर ओपन लूप पोल्स। Z क्या है? नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द RHS। कितने आपके क्लोज लूप पोल्स राइट हैंड साइड में है, उतना ही आपका Z होगा। यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि दैट इन केस ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट वी ऑलवेज यूज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम स्टेबिलिटी क्लोज लूप की कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपन लूप की नहीं, बट यूज किसका कर रहे हैं? ओपन लूप का। ओके, नाउ जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। यहां क्वेश्चन में आपको गिवन है कि नाइक्विस्ट प्लॉट इंसर्कल करता है -1,0 पॉइंट को फॉर k इज इक्वल टू 100, बट फॉर k इज इक्वल टू 10 नाइक्विस्ट प्लॉट इंसर्कल नहीं करता है, डस नॉट इंसर्कल। इसका मतलब क्या है कि फॉर k इज इक्वल टू 10 जहां इंसर्कल नहीं होता है, you will get the n is equal to 0, and for k is equal to 100 n will be non-zero value. Okay, now next thing जो है हमारे पास वो है calculation of p and z, but as I told you that z क्या है आपका? z है number of poles of closed loop lies in the RHS। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं तो अगर कोई भी पोल RHS में होगा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव सिस्टम हम देते हैं, तो कोई भी पोल अगर RHS में होगा तो सिस्टम क्या बन जाएगा आपका? अनस्टेबल। सो इफ सिस्टम इज अनस्टेबल, इसकी क्या मीनिंग होगी कि फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी z शुड बी 0। z की वैल्यू हमेशा आपकी 0 होनी चाहिए फॉर क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया एक्चुअली क्लोज लूप के लिए हमेशा बन जाता है n इज इक्वल टू p। तो अगर n इज इक्वल टू p है then closed loop system will be stable, otherwise it will be unstable. So n तो हमें पता चल चुका है। now what is p? मैं आपको पहले बता चुका हूं p क्या है? RHS ओपन लूप पोल्स। now अगर हम लोग RHS ओपन लूप पोल्स कैलकुलेट करें, ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है, तो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एंड s प्लस 2, एक पोल तो डायरेक्टली दिख रहा है, s इज इक्वल टू -2। now what is second pole and third pole? we can calculate। If we solve s square plus 2s plus 2, we will get s is equal to -1 plus -j। तो हम यहां क्लियरली देख सकते हैं that all the poles are in the left hand side, so p is equal to 0। तो अगर हम लोग का p 0 है और n is equal to p होना चाहिए, तो n हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी, चाहे k की वैल्यू 10 हो चाहे k की वैल्यू 100 हो। लेकिन हमें अच्छे से पता है यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि k की वैल्यू 100 के लिए n नॉन जीरो है और k की वैल्यू 10 के लिए n 0 है। सो क्या होगा आपका? फॉर k इज इक्वल टू 10 सिस्टम क्या बन जाएगा? स्टेबल। बट फॉर k इज इक्वल टू 100 सिस्टम क्या बन जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि n p के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि n आपका नॉन जीरो है एंड p आपका क्या है? 0 है। ओके, सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन बी, जहां पर स्टेबल होगा फॉर k इज इक्वल टू 10 एंड अनस्टेबल होगा फॉर k इज इक्वल टू 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन अगर आप ध्यान से देखो, अगेन स्टेबिलिटी, जैसा मैंने आपको यहां वीडियो के स्टार्ट में ही बोला कि बहुत ज्यादा फोकस यहां पर स्टेबिलिटी की तरफ है गेट 2017 कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस पे। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो हम लोग को यहां पर लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है क्लियरली। यहां पर हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है यहां पर s4 प्लस s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ हम लोग को यह डिटरमाइन करना है कि कितने पोल राइट हैंड साइड में और कितने पोल लेफ्ट हैंड साइड में। बहुत सिंपल सा टेक्निक है, अगेन हम लोग रूट हर्विट्ज क्राइटेरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रूट टेबल अगर हम बनाते हैं, सो s की पावर 4 इज द हाईएस्ट, देन s क्यूब, देन s स्क्वायर, देन s1, देन s की पावर 0। नाउ यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि यहां पर s की पावर 4 के बाद s की पावर 3 मिसिंग है, दैट मींस दैट कोएफिशिएंट इज 0।
देन s की पावर 2 के बाद s की पावर 1 मिसिंग है, दैट मींस दैट कोएफिशिएंट इज 0. सो अगर हम लोग फर्स्ट रो लिखेंगे तो फर्स्ट रो कैसे लिखेंगे, पहला टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज 1, देन एक टर्म छोड़ के सेकंड नेक्स्ट टर्म. सो s की पावर 4 के बाद s की पावर 3 which is 0, we need to write s की पावर 2 कोएफिशिएंट दैट इज 1 अगेन, देन s की पावर 1 को स्किप करना है, देन s की पावर 0 कोएफिशिएंट दैट इज 1 अगेन. सो 1 1 1. In s cube row we will write the s cube coefficient that is 0, then s की power 1 coefficient that is also 0, and next coefficient is also 0. So there is a row of 0 occurs. We know that if row of 0 occurs, then we can't calculate na, because if you calculate multiplying this by this and this by this, then you will get the answer infinity, because you need to divide by this also. Okay, so whenever row of 0 occur, you need to calculate that row values again. And what is the criteria? This is very easy. That row of 0 always occur in the odd power of s, and the row above the row of 0 is give you the auxiliary equation, and you need to remember that auxiliary equation always occur in the even power of s. So here auxiliary equation is s की power 4 plus s की power 2 plus 1. Now for s cube coefficient we need to differentiate the auxiliary equation. You will get simple 4s cube plus 2s after differentiation. So again if you use RS table, then s cube coefficient now will become 4 2 and 0, 4 2. Now if you simply calculate 4 into 1 minus 2 into 1 divide by 4, you will get 0.5. Then this and this, 4 into 1 minus 1 into 0 divide by 4, you will get 1. Then last term will be 0. Same if you use this and this, you will get minus 6, then 0, and here 1 0 0. You can simply calculate this, very simple calculation. But the main thing is you need to again look at the first column of the RH table. If there is a sign change in the first column, then the system will be unstable, or in other language, because question दिया है आपको कि कितने पोल्स RHS में हैं और कितने पोल्स LHS में हैं. So if there is a sign change, that means poles will lie in the RHS. So कितने पोल RHS में हैं? If you come from here to here, there is no sign change. Here to here, no sign change. Now here to here, one sign change. Simply here to here, again one sign change, because positive to negative one sign change, negative to positive two sign change. So total two sign changes will be there. So there will be two poles in the right hand side. Okay, so दो पोल अगर राइट हैंड साइड में हैं, तो अगर हम अपने ऑप्शन की तरफ अब जाएं, क्योंकि ऑप्शन आपको गिवन है ना, तो आगे आपको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाता है तो. फर्स्ट ऑप्शन है 4 LHS पोल, विच इज रॉन्ग, बिकॉज दो तो आप फिक्स कर चुके हो कि RHS में. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपको, 1 RHS, ये भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी बोल रहा है 2 RHS एंड 2 LHS, ये आप कंसीडर कर सकते हो अभी के लिए. ऑप्शन डी क्या है, ऑल 4 रूट्स आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ये भी रॉन्ग हो गया. तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 RHS है. दैट मींस आपको इमेजिनरी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. इमेजिनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आपको बताते हैं कि वेदर द पोल्स आर इन इमेजिनरी एक्सिस और नॉट, बट यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमें. वी कैन डायरेक्टली राइट LHS पोल्स इज इक्वल टू 2, बिकॉज ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई हो रहा है डायरेक्टली. तो हमको टाइम सेव करना है बेसिकली. नाउ अगर हम लोग सेट 2 के क्वेश्चंस की तरफ आए, सेट 1 के क्वेश्चन हमारे हो गए. नाउ सेट 2 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या गिवन है आपको स्टेट स्पेस का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर x1t और x2t की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको x1t और x2t के ऊपर ही ऑपरेशन पूछा है. ठीक है, सो
दैट मीन्स आपको स्टेट इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज आपको x1 डॉट टी एंड x2 डॉट टी दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, सो क्लियर है यहां पर हमें कि हम लोग को यहां पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, बिकॉज x डॉट आपका क्या होता है, a x प्लस बी यू। सो मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स आपका जो इनपुट है वो नॉन जीरो है। अगर आपका इनपुट नॉन जीरो हो तो आपका जो x डॉट टी का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या बन जाता है आपका, एक्स टी इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले एल इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, जिसको हम लोग स्टेट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में को ई की पावर एटी से शो किया जाता है और फाइव टी से शो किया जाता है, मैंने डायरेक्ट शो कर दिया है। सो ई की पावर एटी और फाइव टी इंटू एक्स जीरो आपको गिवन है 0 0 है। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हो जो आपको x0 0 0 दिया हुआ है, दैट मींस आपको इस टर्म को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब x0 0 0 है, जब भी आप 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो नो नीड टू सॉल्व। नाउ प्लस क्या होता है आपका, जब आपको इनपुट गिवन होता, अगर इनपुट यहां 0 होता तो हमारा यही फाइनल आंसर होता, जो कि 0 होता, बिकॉज हियर वी गेट 0 बिकॉज ऑफ x0 वैल्यूज। बट यहां चूंकि इनपुट गिवन है इसलिए प्लस होगा आपका एल इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स बी इंटू यूएस। सो बी क्या है आपका, ये बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 045। यूएस क्या है आपका, यूएस है आपका इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम यहां पर देखें आपको इनपुट गिवन है क्या, हाँ इनपुट गिवन है, आपको इनपुट क्या दिया है, स्टेप फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, 1/s, तो हम लोग यहां यूज कर पाएंगे इसको। बी आपको गिवन है 045, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट करना होगा एस आई माइनस ए, देन एस आई माइनस ए का इनवर्स, उसके बाद ही हम तीनों को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लाप्लास ले सकते हैं। सो ए आपको कितना गिवन है, 0 0 0 माइनस 9, ठीक है। बी आपको गिवन है 045, ओके। सो अगर हमको एस आई माइनस ए पहले कैलकुलेट करना है, सो आपका एस आई माइनस ए, आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब भी आप एस आई माइनस ए परफॉर्म करोगे, सो यू विल गेट एस 0 0 एस प्लस 9। सिंपली बस आपको ए मैट्रिक्स को माइनस कर देना है एस आई से, और कुछ भी नहीं। नाउ दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो बहुत इजी, आप जानते हो, यू ओनली नीड टू कैलकुलेट द adjoint एंड मॉड। सो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, adjoint ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ मैट्रिक्स, मॉड मींस डिटरमिनेंट। सो adjoint बहुत इजी होता है 2 क्रॉस 2 के लिए। आपको क्या करना होता है, प्राइमरी डायगोनल के कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करना होता है और सेकेंडरी डायगोनल के कोएफिशिएंट के साइन चेंज करने होते हैं। बट हियर इन सेकेंडरी डायगोनल कोएफिशिएंट आर 0 0, सो नो नीड टू डू एनीथिंग। बट इन प्राइमरी डायगोनल coefficient is s plus 9, so you will interchange them. So s plus 9 here and s will be here. So if you use equation number 2, which is this, the solution xt, then si minus a inverse value you can put here. I have divided the 1 upon s into s plus 9 in the matrix, okay. Then b us, what is the value of b? B is your 045 and us is 1/s because step input is given to you, so it will become 0 and 45 by s. So 0 and 45 by s. Now for L inverse हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करना होगा इस मैट्रिक्स का, क्या कैलकुलेट करना होगा, मैट्रिक्स का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म करना होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते ही दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड दिस इज योर 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, सो ओवरऑल विल बी 2 क्रॉस 1। सो हियर यू विल गेट 0 and 45 upon s into s plus 9, okay. Now here this is again L inverse, okay. Now this is L inverse, then this coefficient, this term 0 and 45 upon s into s plus 9, what is this? This will give you the x1s and x2s, okay.
ये क्या हो जाएगा आपका 0 and 45 upon s into s plus 9. ये आपको क्या मिल जाएगा x1s and x2s. Suppose you don't want to calculate a inverse right now. For x1t x2t you need to calculate inverse. That's true. But 0 and 45 upon s into s plus 9 ये क्या हो जाएगा आपका x1s x2s. लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका x1t and x2t का. Now अगर हम लोग क्वेश्चन पे वापस आए तो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था. क्वेश्चन पूछा था लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x1 स्क्वायर t प्लस x2 स्क्वायर t. अगर हम लोग अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी को रिमेंबर करें विच इज अ फाइनल वैल्यू थ्योरम. सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द t टेंड्स टू इंफिनिटी यू कैन आल्सो कैलकुलेट बाय s टेंड्स टू 0 and multiplied by additional s. This is your final value theorem. So limit t tends to infinity under root x1 square t plus x2 square t will be equal to limit s tends to 0 s and Laplace transform of this. But here clearly x1s is 0 and x2s is 45 upon s into s plus 9. So this complete term actually will become only x2s. So you need to calculate limit s tends to 0 s into x2s which is 45 upon s into s plus 9. S will be cancelled and if you put s tends to 0 you will get 45 upon 9. Answer will be 5. So this is very easy question. अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा देखने से बट क्वेश्चन बहुत ही इजी था आपका. जस्ट आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करना था लास्ट में और स्टार्ट में आपको स्टेट सॉल्यूशन सॉल्व करना था. और एक चीज और है जिन्होंने कंट्रोल सिस्टम स्टडी किया होगा स्टेट इक्वेशन उनके बाद बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी आपका इनपुट गिवन होता है सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका 2 to 3 पेजेस का जाता है. बट यहां पर ऐसा नहीं था. यहां पर आपको चूंकि इनिशियल वैल्यू 0 दे दी थी x1 0 x2 0 दैट मींस आपका फर्स्ट हाफ तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी. सेकेंड हाफ में भी आपको जो इनपुट है वो 0 45 मींस एक मैट्रिक्स की वैल्यू आपको 0 दी थी और a जो इनपुट है आपका जो आपका a मैट्रिक्स है उसमें भी आपके आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स 0 थे. मींस कैलकुलेशन बहुत इजी था आपका. ओके एक और चीज लोग कंसीडर कर सकते हैं यहां आपको कोई नेसेसिटी नहीं थी कि आप फाइनल वैल्यू थ्योरम का ही यूज करें. इफ यू वांट देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट L इनवर्स हियर. यू विल गेट द आंसर x1t x2t. x1t विल बी 0 एंड x2t यू विल गेट इन फॉर्म ऑफ t. बट चूंकि हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं दैट्स व्हाई हमने यहां पर कैलकुलेशन नहीं किया इनवर्स का. हमने डायरेक्ट फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज किया और डायरेक्टली हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. ये आपको क्या दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है. उसमें आपको पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें लीड कंपनसेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस द सेटलिंग टाइम. ओके लीड कंपनसेटर क्या करता है आपका स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है. दैट मींस जल्द से जल्द सिस्टम क्या हो जाता है आपका सेटल्ड हो जाता है. दैट मींस इट विल रिड्यूस द सेटलिंग टाइम. करेक्ट ऑप्शन. लैग कंपनसेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर. क्लियर है हम सबको. लैग कंपनसेटर जो होता है वो स्टेडी स्टेट एरर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और लीड किसको इंप्रूव करता था ट्रांजिएंट को. तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट क्या है लीड कंपनसेटर मे इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. ये भी करेक्ट है हमारा. जो लीड कंपनसेटर रहता है आपका वो कभी कभी आपका ऑर्डर क्या कर सकता है इंक्रीज कर सकता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज होता है. लेकिन समटाइम्स इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द ऑर्डर. ठीक है. पर अगर हम लास्ट ऑप्शन पे आए लीड lag compensator always stabilize an unstable system. Always stabilize an unstable system. It is absolutely wrong statement. क्योंकि lag compensator कभी भी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज होता ही नहीं है. lag compensator किसके लिए यूज होता है स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट आपकी जो डी है वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे.
आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, आपको ys अपॉन एक्सेस, दैट मींस ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिया है। जनरली हम लोग जब क्लास में भी स्टडी करते हैं तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं डालते, वी ऑलवेज पुट एम्फेसिस ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो एग्जाम में भी अगर आपको ब्लॉक डायग्राम में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दिस ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ, देन क्वेश्चन विल बिकम वेरी वेरी इजी एक्चुअली। अगर हम कन्वर्ट करें इसको, सो दिस इज योर एक्सेस, देन देयर इज अ पॉइंट हियर, देन फॉर एवरी एडर वी नीड टू पुट पॉइंट, देन हियर गेन इज 2, here again adder, so point, here again this point, so there is a point here, and last ys. Okay, there is a feedback from this point to this point, so there is a feedback from this point to this point, and there is a forward path from this point to this point, so again there is a forward path from this point to this point. Okay, जहां जहां पर आपको गेन नहीं गिवन है, you can directly write gain equal to 1, or you can skip, no problem. Okay, here gain is -1. Why? Because in the feedback path there is a negative feedback, so 1 is by default and there is a -1 because of negative feedback. Now for signal flow graph we need to calculate the forward path as well as the loops. So forward path यहां पर कितने हैं आपके? Forward path means access to ys paths. Okay, so access, there is a direct path, so what is the gain? 2, so p1 is 2. Now any more path available? We can check. Yes, from here this is the path. What is the gain? What is the gain here? Gain is 1. Okay, now loops अगर हम लोग देखें तो लूप यहां पर, ये लूप हो सकता है क्या? नहीं, यहां पर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एरो, यहां से अगर स्टार्ट करें तो this, yes, this can be a loop, so loop gain will become -2. now Mason's gain फॉर्मूला में यूज करना होता है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो Mason's gain फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है? p1 del 1 plus p2 del 2 upon del. now what is del 1, del 2 and del? del is a simple determinant, फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए. Now what is del 1? del 1 क्या होता है? It's simply a del and associated with the p1. तो del में आपको उन लूप गेन्स को नेग्लेक्ट करना है. del का हमारा फॉर्मूला होता क्या है? del का हमारा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? del का फॉर्मूला हो जाएगा 1 minus of L1, because there is a simple single loop gain. You can write L1 here, no problem, or you can simply write L. So 1 minus individual loop gains, so L1 only, plus क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स एंड सो ऑन. बट यहां पर ऐसा कोई इशू ही नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही लूप है. सो 1 minus L1, सो डेल कितना हो जाएगा हमारा? 1 plus 2, कितना बन जाएगा हमारा? 3. ओके, नाउ डेल में डेल 1 क्या होता है आपका? इज इक्वल टू डेल, बट यू हैव टू नेग्लेक्ट द लूप्स विच आर टचिंग द फॉरवर्ड पाथ P1. सो अगर आप देखो फॉरवर्ड पाथ P1 में ये लूप आपका टच हो जा रहा है, सो यू नीड टू एक्सक्लूड L1, सो del 1 विल बिकम 1. सिंपली del 2 क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू del, बट यू नीड टू नेग्लेक्ट द लूप गेन्स विच आर इन द फॉरवर्ड पाथ P2. सो यहां फॉरवर्ड पाथ P2 में जाएं तो क्या टच हो रहा है हमारा लूप? यस, ये पॉइंट टच हो गया. सो del 2 भी क्या बन जाएगा हमारा? 1. सो del 1 1 और del 2 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. नाउ Mason gains फॉर्मूला अगर वैल्यू पुट कर दें हम लोग, सो p1 2 into 1 plus 1 into 1 divided by del, so answer will be 1 here. Simple question. Now next question क्या गिवन है आपको? सेकेंड ऑर्डर LTI सिस्टम आपको गिवन है. अगेन ये आपका स्टेट स्पेस का क्वेश्चन है, बिकॉज आपको यहां पर x1.t एंड x2.t गिवन है. ठीक है, आपको इनपुट गिवन है RT और आपको आउटपुट जो है CT वो भी गिवन है कि x1t के इक्वल है. आपको बताना है कि सिस्टम क्या है आपका. सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस को भी मिक्स कर दिया है यहां पर. स्टेट स्पेस तो है ही, साथ में आपका सेकेंड ऑर्डर में मिक्स किया है. आपसे पूछा है कि अंडर डैम्ड सिस्टम है कि ओवर डैम्ड है कि क्रिटिकल डैम है कि अनडैम्ड है. सो बहुत ही सिंपल अगर अप्रोच हम लोग फॉलो करें
क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बताना है कि सिस्टम कौन सा है हमारा, तो हम लोग क्लियरली अगर सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लें, दैट मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, तो हम लोग बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा कौन सा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले अगर फर्स्ट इक्वेशन का, तो क्या बन जाएगा, एस एक्स वन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एस। डिफरेंशिएशन के लिए क्या यूज होता है, एस यूज होता है एक्स्ट्रा। सिंपली सेकंड का क्या हो जाएगा, एस एक्स टू एस प्लस टू एक्स वन एस प्लस थ्री एक्स टू एस। आर टी का क्या हो जाएगा आपका, आर एस। अगर हम लोग वन और टू इक्वेशन को यहां पर ध्यान से देखें, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से एक्स टू एस की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, देन वी विल गेट इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ output is given to you, cs is equal to x1x. now ts is equal to cs upon rs. so अगर हम लोग आउटपुट और इनपुट के लाप्लास को डिवाइड कर दें, सो x1s जो हमारा है वो cs है, ठीक है, और rs जो है हम लोग को ये इक्वेशन है कंप्लीट। तो अगर हम लोग cs अपॉन rs करते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ साइड x1s कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अगर हम इसके रूट्स कैलकुलेट करें तो रूट आएंगे आपके -1 एंड -3, बिकॉज ऑफ रूट्स आर इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ आर एट डिफरेंट लोकेशन, सो सिस्टम विल बी ओवरलैप्ड। ओके, नाउ next question is unity feedback control system is characterized by the open loop transfer function. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, जीएस दिया हुआ है। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ के निकालना है हम लोग को सच दैट सिस्टम विल ऑक्सीलेट एट 2 रेडियन पर सेकेंड। ये पॉइंट हमें शुरू से ही दिमाग में रखना है कि सिस्टम ऑक्सीलेट कब करता है, जब सिस्टम आपका मार्जिनल स्टेबल होता है। अगेन हमें यहां पे रूट हर्विट्ज टेबल का ही यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अगेन सेम थिंग, 1 प्लस जी इक्वल टू 0। सो 1 प्लस जी 0 ही करते हैं हम लोग को क्या मिल जाएगा, QS। अगर हम लोग S के पावर्स को अरेंज कर लें, सो हाईएस्ट पावर विल बी क्यूब, देन 2, देन 1, देन 0। नाउ अगर हम लोग RS टेबल का यूज करते हैं तो अगेन इन S क्यूब रो फर्स्ट टर्म विल बी 1 एंड सेकेंड टर्म विल बी 4 एंड इन द S स्क्वायर रो K एंड सिंपली अगर कैलकुलेट करें 4k minus 3 divided by k and 0 0 here and the last row 3 into 0 4k. okay, so next calculation will not be possible because the answer will be 0 0. so if you consider the first column, then in the first column where we will get the row of 0, we need to identify that. row of 0 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि row of 0 जब ऑकर होती है तभी आपका सिस्टम ऑक्सीलेट होता है। दैट मीन्स सिस्टम आपका मार्जिनल स्टेबल होता है। दैट मीन्स सिस्टम आपका, या जो आपके पोल्स हैं, जो पोल्स के जो पाथ है वो इमेजिनरी एक्सिस को आपको कट करता है। ओके, सो फॉर row of 0 to occur, the odd power of S जिस रो में भी ऑकर हो रहा है वो रो आपकी 0 होनी चाहिए। सो S क्यूब ये 0 नहीं हो सकती ना, बिकॉज हियर 1 and 4 फिक्स वैल्यूज आर गिवन टू यू। देन नेक्स्ट ऑड पावर इज S की पावर 1, that can be 0 because one term is 0 and the second term is 4k minus 3 upon k. If this term will become 0, then 4k minus 3 upon k is equal to 0, that means k is equal to 0.75. that means मेरा सिस्टम ऑक्सीलेट कब करेगा, जब k की वैल्यू 0.75 होगी। यहां पर एक्चुअल में हमें 2 रेडियन पर सेकंड की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन था कि सिस्टम ऑक्सीलेट कर रहा है और सिस्टम ऑक्सीलेट तभी कर सकता है जब रो ऑफ 0 ऑकर हो एनी ऑड पावर ऑफ s। तो यहां पर ऑड पावर ऑफ s जो सेटिस्फाई कर सकती है ये क्राइटेरिया, वो s की पावर 1 है। तो क्लियरली यू विल गेट k is equal to 0.75। बट अगर आपको है कि आप 2 रेडियन पर सेकंड का यूज करना चाहते हो तब उसको भी यूज करके आंसर निकाल सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। जो रो ऑफ 0 के अबव जो रो होती है दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन ही है जो आपको रूट्स देता है
किसके, कि कब आपका सिस्टम ऑक्सीलेट करेगा, उसके रेस्पेक्ट में आपके एस की वैल्यूज क्या क्या होंगी, एस के रूट्स आपके क्या क्या होंगे. So if we write auxiliary equation, then it will become k s square plus 3 equal to 0. Then s square will be minus 3 upon k. अगर आप यहां पर s की वैल्यू j ओमेगा पुट करो तो j ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा. ओमेगा आपको गिवन है 2, j स्क्वायर कितना बन जाएगा -1. सो माइनस माइनस विल बी कैंसल, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. यू विल अगेन गेट द सेम वैल्यू k इज इक्वल टू 0.75. तो ये आपके ऊपर था. अगर आपको टाइम सेव करना है और आपको रूल्स अगर अच्छे से पता है, नो नीड टू यूज 2 रेडियन पर सेकेंड, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो आंसर विल बी 0.75. नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आपको गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पर आपको इस बार नाइक्विस्ट प्लॉट बना के गिवन है. और नाइक्विस्ट प्लॉट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लाई इन द आरएचएस, जबकि आपका k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है. 0 और 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती, बिकॉज हियर द साइन इज ऑलवेज ओनली लेस देन और ग्रेटर देन. द साइन आपका इक्वल टू वाला साइन नहीं है. ओके, तो हम लोग को नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पता ही है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में कि n क्या होगा आपका p माइनस जेड. n क्या है, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट अराउंड -1,0 पॉइंट. p क्या है आपका, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप लाइज इन द आरएचएस. z क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप लाइज इन द आरएचएस. तो क्लोज लूप की स्टेबिलिटी के लिए z क्या होना चाहिए हमारा 0 एंड n क्या होना चाहिए p के इक्वल. सो अगर आपका यहां पर n और p अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो और दोनों अगर इक्वल निकल जाते हैं तो सिस्टम क्या बन जाएगा आपका, स्टेबल. तो हम लोग यहां क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग को n की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्योंकि हम लोग यहां पर प्लॉट गिवन है ना. तो प्लॉट हम लोग को बस ये चेक करना है कि क्या हमारा प्लॉट जो है -1,0 पॉइंट को इंसर्कल कर रहा है. सो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो जो मैक्सिमम जो पॉइंट है वो -k है. सो -k दैट मींस k की वैल्यू डिसाइड करेगी आपकी. पर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि k जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 है. तो अगर k ऑलवेज लेस देन 1 है मतलब ये पॉइंट जो होगा -1 से लेस होगा, मतलब आपका नाइक्विस्ट प्लॉट इंसर्कल नहीं करेगा -1,0 पॉइंट को. दैट मींस n इज इक्वल टू 0. ओके, अगर आपका n 0 है तो नेक्स्ट क्या रह गया आपको, p की वैल्यू निकालना, OLTF पोल्स. तो क्लियर, आपको यहां पर OLTF के डिनोमिनेटर आपको पता है, तो s³ + 3s² + 10. अगर आप उसको सॉल्व करके उसके पोल्स निकाल लो तो पोल विल बी -3.72 एंड 0.36 ± j 1.59. अगर आप तीनों पोल को ध्यान से देखोगे तो तीनों पोल जो हैं आपके वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं. और यू कैन से 2 पोल आपके आरएचएस पे हैं और एक पोल आपका कहां है, एलएचएस में है. और जो आरएचएस वाले पोल हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स है, पर वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो आरएचएस में है. तो अगर वो आरएचएस में है दैट मींस आपकी p की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 2. ठीक है ना, p क्या शो कर रहा है हमारा, कितने पोल्स आपके ओपन लूप के आरएचएस में है. तो 2 पोल है तो p की वैल्यू क्या होगी 2. दैट मींस n p के इक्वल नहीं है आपका. तो हम लोग का अगेन क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा कि n p माइनस z के इक्वल होता है. अगर n p के इक्वल नहीं है दैट मींस z क्या है आपका 0 नहीं है. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो n की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 2 है, तो z क्या आ जाएगा आपका 2. दैट मींस क्लोज लूप के 2 पोल जो है वो आपके आरएचएस में है. z क्या शो करता है, पोल्स ऑफ क्लोज लूप लाइज इन द आरएचएस. दैट मींस z की वैल्यू 2 होने का मतलब है सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल. ओके, एंड ऑप्शन सी जो आपको दिया हुआ है 2 वो आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, यहां पर एक और पॉइंट था हाईलाइट करने के लिए. आजकल गेट में आप जो कैलकुलेटर यूज करते हो उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते आप. सो अगर आपको इसके पोल्स निकालने में थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी होती है, s³ + 3s² + 10 जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है डायरेक्टली, आप यहां पर RH टेबल का भी यूज कर सकते हो. आपको सिर्फ ये इक्वेशन कंसीडर करना है, s³ + 3s² + 10
इसके लिए अगर आप आर एस टेबल ड्रॉ करते हो, ओके, इस इक्वेशन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा बाय लुकिंग एट द फर्स्ट कॉलम ऑफ द आर एस टेबल कि कितने रो आपके एलएचएस में है और कितने रूट्स आपके क्या है, आपके आरएचएस में है। तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा, पी की वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी। ओके, सो यू कैन यूज एनी अप्रोच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चंस आपके ओवर हो गए। तो ये आपका कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस आए थे गेट 2017 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप क्लियरली देख पा रहे हो, जैसा मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि जो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आए थे वो बेसिकली स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे। बहुत ज्यादा 80 to 90% क्वेश्चंस आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर थे, वेदर इट इज मैकपीस प्लॉट और बोडे प्लॉट और रूट हर्विट्ज। रूट हर्विट्ज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपके। ओके, नाउ दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, हमारी ईमेल आईडी है eidelhi@gmail.com। ओके, नाउ गुड बाय।